इंजीनियर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी, राइट? तो लाइफ है ना, सब कुछ चलता है, बिंदास लाइफ को जियो, अपना गोल एकदम सेट रखो और मनी के पीछे मत भागो। जब 90s के क्वेश्चन जब पढ़ोगे, सब्जेक्टिव आता था, आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा उसका बेस नहीं पता, आपके पास कोई हिंट नहीं, कॉपी आपकी ब्लैंक जाएगी, आप ऑप्शन भी नहीं लिख सकते, ABC भी नहीं कर सकते। खाना खाना, अपने शरीर पे ध्यान देना, एक्सरसाइज करना है, कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ लो और अपने विजन जो पढ़ रहे हो, जो जॉब है आपका आज, उसे अच्छे से करो। Hello everyone, I am Rupali, and before we start, let me introduce to the indispensable part of our college, the Campus TV and Radio Club, and the initiative by AICTC and 360 Feedback Program. Our motive is to discover, develop, and dominate. With the tagline "Join us and unleash your potential," founded by Mr. Kumar Gaurav sir, 2K19 batch, and we are its fellows. Uh, we our coordinators from third year, Chandra Bhanu sir, uh, and to put colors to this session, there will be some interesting questions from you, sir. We all are from second year. This club is working hard day night here. This club is working hard day night to elevate the standards of BC Bhagalpur in every aspect, whether in terms of academics, curricular activities, or placements. Today we are here to add you more milestone to our journey, and with that only Sumit sir. Thank you, sir. Let's Thank you, start. thank you. Hello everyone, it is my pleasure to introduce you to our essential guest for today's webinar, Mr. Sumit Kumar. Sumit sir Yeah. is an alumni of prestigious BC Bhagalpur and currently works with the Central Electricity Authority of India. He has not only excelled in his professional life but also has achieved great success in the world of sports as a carom champion. His achievement serves as an inspiration to many, and his expertise is of great value for us. Today, Sumit sir will be sharing his insights and experiences with us, and we are truly privileged to have the opportunity to learn from him. So please join us and give a very warm welcome to Mr. Sumit Kumar. Sir. थैंक यू संदीप। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, आप लोग मतलब क्या चाहते हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो? सबसे पहले वहीं से स्टार्ट चलता हूँ। कुछ आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या आपका आगे है? इससे पहले आप मेरे बारे में जानो, क्या सोचते हो आप लोग इंजीनियरिंग करते वक्त? एनीवन? कुछ यूनिक करना है सर और कुछ तो सोचा होगा। सर इंजीनियर सोचते नहीं है, इंजीनियर्स को जैसा जो मिलता है कर लेता है, जहाँ जो फील्ड हुआ। ये बात आई एग्री विद यू, इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। इवन Yes, उनको sir. आप कह दो जी ऑपरेशन करना है, दे कैन एबल टू They can. ये बात तो है। मैंने Anyway, सोचा है सर सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब करना है सर। संदीप नो सर, मैं सर चंद्र, ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गुड, अच्छी है। उसमें तो बहुत स्कोप है। संदीप आपका, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर इंजीनियरिंग? So for now it's GATE. फिर Research field. अच्छे मार्क्स आ गए। GCE. ओके, सृष्टि Sir, कुछ I सोचा want है? to go for. Yes, sir. Pretty क्या good. क्या I want करना? to take pretty good package from this college. So you want to gain some packages from company, good packages. Yes, sir. Only Yes, sir. only target to earn money. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. And you, Kushi? Sir, software developer. Software. Okay. Ultimately, goal all of you to earn money, na?
Yes, या sir. मनी इज द सर, Of course, sir. मनी के बिना जीवन नहीं है संभव सर। चलो इसके डिस्कशन हम बाद में करेंगे। आप लोग को जो पूछना है आप लोग पूछो मुझसे। यस सर। Okay. Sir, so starting with the question, please tell us a little about yourself, like name, the branch which you are in the college, your current position, just in brief. As well, you said that my name is Sumit Kumar. I'm from 90 batch electrical. We have done actually 90 batch. I have done I think 94 December. Yeah, I just pass out. और जो मैं कॉलेज में था तो मैं टू बी वेरी ट्रूथ आई नेवर स्टडी, तो सब कुछ क्लियर हुआ विदाउट एनी बैक। स्कोर ठीक ही ठाक था, अबाउट 65%। बट इन कॉलेज मैंने बाय हार्ट अगर कहूँ तो मैं कभी पढ़ा नहीं। इन 4 years आई यूज्ड टू प्ले कैरम इन टीटी, और सबसे बड़ा पैशन जो है मेरा, जो आज भी है, मैं फिजिक्स और मैथ्स तब से पढ़ा रहा हूँ फॉर आईटी, जेई और नीट एंड 11th-12th, और आज भी मेरा पैशन है। जब भी कभी मौका मिलता है मैं क्लासेस ले लेता हूँ, तो फ्री रहता है। आई डू नॉट टेक एनी चार्जेस। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स आज आईटी, बीएचयू और कई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे हैं, बहुत से कर भी चुके हैं। और 97 में हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया, और ठीक ही ठाक उस समय बड़ा क्रेज था कि गवर्नमेंट जॉब लगे और सब अर्न करें मनी। मतलब जब मैं उस समय छोटे से एक सपना था कि मैं सरकारी इंजीनियर बनूं, और वो 97 में मैंने पूरा किया। और आज 25 years हो गए जॉब करते हुए, और आज रिग्रेट होता है कि मैंने इतना छोटा सा सपना लिया था। और ज़्यादा तो मैं ऑन पोर्टल ज़्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ पब्लिक में, बट आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग को मैंने अभी सुना कि सब पैसे के पीछे भागते हो। मेरा एक शॉर्ट में सजेशन है कि पैसा को एकदम साइड में रखो। जैसे आपने बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी ने कुछ बताया, उसको आप अपना पैशन मारो और उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। मनी पे कभी कॉन्सेंट्रेट मत करो, इट विल कम डिफॉल्ट। जब आप जैसे सॉफ्टवेयर आप बता रहे हो ना, आप जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आप उस पे ध्यान दो, उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। कभी भी आप पैसे के पीछे मत भागो। इन शॉर्ट, बाकी डिटेल हम लोग जानेंगे। और मैंने कई जगह काम किया है, जैसे मैं दिल्ली में रहा, मैं इंदौर में रहा, और अभी मैं मुंबई में हूँ। और पावर सेक्टर में मैंने फ्रॉम एनी प्लानिंग से लेके इवन टैरिफ तक, यानी जनरेशन, उसका टैरिफ, जो उसका जो प्लानिंग होता है बिफोर कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो उसको अप्रूवल होता है, वहाँ भी हमने काम किया। फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट में हमने कई उनकी मॉनिटरिंग की, जब वो कंस्ट्रक्शन स्टेज में होते हैं वहाँ पे हमने गया। जब वो बन जाते हैं तब उनका ऑपरेशन जो होता है, आपने सरदार सरोवर डैम का नाम सुना ही होगा। यस शुरू में हमने 3 से 4 साल वो उसका पूरा ऑपरेशन, उसका जो शेड्यूलिंग था उसको किया। और राइट नाउ जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये एक प्लानिंग है जहाँ मैं वेस्टर्न रीजन का डेटा को कलेक्ट करता हूँ, और बेस्ड ऑन दिस डेटा कि कितनी लोड आएंगे आपके नेक्स्ट 5 years, उसके बेस पे हमारी बाकी की जितनी भी प्लानिंग की जाती है। दिस इज माई होल जर्नी फ्रॉम 97 टू टिल डेट, फ्रॉम हाइड्रो प्रोजेक्ट से लेके फिर प्लानिंग और टैरिफ इन इंडिया। हमने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में भी 3.5 साल वहाँ काम किया, जहाँ पे टैरिफ डिसाइड्स होते हैं हमारे पावर प्रोजेक्ट्स। ये मेरी मतलब ऑफिस की थी जर्नी। और स्पोर्ट्स की तो वो मेरा पैशन है, बिना उसके मैं रह नहीं सकता हूँ। खेल तो मेरा मतलब खेल और ये आपका फिजिक्स और मैथ्स मेरी लाइफ है, टू बी वेरी फ्रैंक। अर्ली इन द मॉर्निंग मैं उठता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ 6:30 से 8,
8 o'clock और शाम को 6 o'clock से 7:30 मेरा कैरम। ये अपने कॉलेज से ही है, कॉलेज में तो ज़्यादा ही खेलता था, पढ़ाई कम करता था, तो वहाँ कोई शेड्यूल नहीं था कैरम और टीटी खेलने का। पर उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मतलब पूरी कभी भी मैंने इन दोनों गेम को छोड़ा नहीं, आज भी खेलता हूँ। और पढ़ाई फिजिक्स और मैथ्स, भले हमारा आपका इंजीनियरिंग के कोई पैशन नहीं है, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन भीमरा है, पता नहीं आप लोग इलेक्ट्रिकल के हो, कोई नहीं हो ना Yes, sir. हाँ जी। Yes sir, electrical. इलेक्ट्रिकल थरीजा और ये क्या पावर सिस्टम स्टीवेंसन। यस सर, BL तरेजा। आज मेरे सामने दे दो तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। 25 ईयर्स से भूल गए, क्योंकि जॉब में आपका उसका एप्लीकेशन नहीं रहता। सबसे एजुकेशन सिस्टम का यही ड्रॉबैक है हमारे इंडिया में कि जो आप पढ़ते हो ना उसको आप अप्लाई जो है करने का मौका ड्यूरिंग जॉब आपको रेयरली कभी मिलता है। बेसिकली ज्यादातर जगह आपको डेटाबेस प्लानिंग मतलब एक रूड वे में आपको काम करना पड़ता है। दिस इज माय इन शॉर्ट होल जर्नी। और हर्डल्स तो बहुत आए और आते ही रहते हैं और आगे भी आएंगे, तो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको भी आता होगा और वो जिंदगी भर आता रहेगा। दिस इज माय शॉर्ट स्टोरी अबाउट मी। सर आप शुरू से ही इंजीनियर ही बनना चाहते थे या फिर कुछ और था आपके दिमाग में? मींस चाइल्डहुड में सबका ड्रीम होता है। हाँ, शुरू से मैं इंजीनियर बनना चाहता था। एक्चुअली शुरू से मैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मेरा पैशन था, मतलब मेरा दिमाग ये कहता था ट्रांसमिशन लाइंस कैसे बनती हैं, कैसे मतलब क्या प्लानिंग होती है, ये चीज मेरे दिमाग में था। और एक मामा है हमारे पटना में रहते हैं, पप्पू मामा है हमारे, वो हमारे मतलब उनको जब भी देखता था तो ये लगता था कि मैं इनकी तरह बनूं। आज वो इंजीनियर हैं वहाँ बिहार गवर्नमेंट में। तो जब छोटे थे 12th में तो उनको उनसे ज्यादा इंटरेक्शन होता था, तो लगता था इनकी तरह बनूं, और वो 97 में पूरा कर लिया। लेकिन वो जो पैशन था ट्रांसमिशन लाइन और इस तरह चीज का, यहाँ आने के बाद उसका जरा सा भी मतलब देख नहीं पाया। मतलब डिफरेंट और हमें डिपार्टमेंट मिलते गए और मैं वहाँ पे अच्छा काम करता गया, और हर जगह कुछ ना कुछ मैंने जहाँ भी काम किया कुछ ना कुछ तो नया किया ही है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कुछ नया करूं। ये तो था कि मैं बचपन से इंजीनियर बनना चाहता था, और वो भी ट्रांसमिशन लाइंस पावर सिस्टम, जो कि मैं कभी नहीं कर पाया। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम किए, लेकिन पावर सिस्टम में हार्डली 1 ईयर और 1.5 ईयर मैंने काम किया अपने इस डिपार्टमेंट। सर आपके लाइफ एक्सपीरियंस इनसाइट्स तो बहुत अच्छे हैं। वी वुड लाइक टू नो, आप जब यहाँ कॉलेज में आए थे तो लाइक वो 4 ईयर एक्सपीरियंस आपका कैसा था? यहाँ पे आके बीसी भागलपुर में फर्स्ट थॉट क्या था, ऐसे प्रोग्रेस कैसे होते गया आपका 4 इयर्स में? आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन एज एन इंडिविजुअल हुआ कॉलेज में, वो कैसा था? वो एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है आज? आपके लाइफ में वो एक्सपीरियंस क्या वैल्यू होल्ड करता है? हाँ, ये बात तो है। जब मैं पहली बार कंप्लीट किया बिहार इंजीनियरिंग का, तो बहुत ही मतलब अमेजिंग मोमेंट था वो। मैं कभी, क्योंकि उस समय जो एग्जाम होता था 90s में जो एग्जाम होता था, आज की तरह एग्जाम नहीं होता था वो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और सिंपली आपने 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन चूज करना होता है, ऐसा उस समय नहीं था। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और आफ्टर वन एक्चुअली जिस साल मैं पास आउट हुआ था उस बार तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। 1 साल मैंने प्रिपरेशन किया इंजीनियरिंग की, और उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिया, उस समय का एग्जाम जो था वो हम लोग को एक छोटी सी बुक मिलती थी जिसमें मुझे लिखना रहता था, कंपटीशन में बता रहा हूं, जिसमें स्पेस ही इतना रहता कि उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, वो सब्जेक्टिव रहता था। अगर आपका वो फर्स्ट अटेम्प्ट गलत हुआ तो अब आप जान के भी कि हाँ आंसर ऐसे निकलेगा, आप फिर दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे वो क्वेश्चन। उस समय की बता रहे थे बात, जब हम लोग जो एग्जाम देते थे कंपटीशन का। आज तो आप रब करके ऑब्जेक्टिव के आंसर्स को हटा सकते हो। तो आज भी मेरा एक क्वेश्चन याद है जो उस समय पूछा गया था, वो मेरे माइंड में आज भी है। जब मैं पढ़ाता हूँ
तो अक्सर जब वो क्वेश्चन आता है तो मुझे वही दिन आता है, याद आता है जब मैं वो एग्जाम में उसका आंसर निकाला था। वो क्यूब का एक रेजिस्टेंस, आप लोगों ने भले ही देखा होगा एग्जाम जब आपने तैयारी की होगी, क्यूब के साइड्स में जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, डायगोनल के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है जिसका आंसर 5/6 R होता है, राइट। वो क्वेश्चन आया था और उसको जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तो गलत आया था, तो साइड में मैं उसको मतलब एक लाइन खींच के उस इतनी छोटी सी कॉपी, मतलब जो आप बच्चे वाली जो कॉपी होती है ना, जो लोअर केजी अपर केजी में जो साइज रहती है ना, उसका हाफ आप मान लो, उतनी साइज की आपको कॉपी मिलती थी एग्जाम में, उसका आधा रख के मैंने जो एग्जाम दिया और हम लोग का आया सिलेक्शन। तो वो जो इंसिडेंट था वो मैं एकदम फ्रॉम बिगिनिंग आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आंसर से दिया 1 या 2 महीने बाद रिजल्ट आया और जब मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था, टू बी वेरी फ्रैंक, सेकंड लिस्ट निकली, उसमें मेरा नाम था और मेरी रैंक थोड़ी नीचे थी, तो हम लोग को विदाउट ब्रांच हम लोग को मिला था। और पहले हमारा एडमिशन जो है एक्चुअली मुजफ्फरपुर उस समय था, कंडक्ट करा रहा था, और उस समय हमें विदाउट ब्रांच बीआईटी सिंदरी मिला था। हमारे साथ 3 और हमारे दोस्त थे और तो हम लोग बीआईटी सिंदरी में हम लोग 2 या 3 महीना रहे होंगे वहाँ भी। जब रहे उसके बाद 3 महीने बाद फिर एक बार काउंसलिंग हुई, फिर हम लोग को यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में भागलपुर में एडमिशन मिला। हम लोग यहाँ दोबारा आए और एक ग्रेड जब मैं एंटर किया था अपने बीसी भागलपुर में, तो वहाँ ही हमने स्टार्ट किया टीटी खेलना। और टीटी मुझे आता नहीं था, हमने स्टार्टिंग वहीं से की थी। रात में हम लोग 12 बजे हॉस्टल नंबर 1 में, जहाँ फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो हम लोग अपना रात में क्लास करके आए 5-6 बजे तक। उसके सीधे मैं कॉमन रूम में घुस जाता था। एक तरफ कैरम रखा होता था, एक तरफ टेबल टेनिस, और ज्यादातर टाइम हमारा कॉमन रूम में बीता है बीसी भागलपुर में। स्टडी में बताऊं, स्टडी हमारा एक्चुअली 12th बड़ा स्ट्रॉन्ग था और उस कॉन्फिडेंस के कारण जो मैंने जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आके मेरी थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सिर्फ 12th के नॉलेज के बेस पे मैंने सब पेपर क्लियर किए। सिर्फ 12th के नॉलेज, इतना कॉन्फिडेंस था। मैकेनिक्स और वो जो हम लोग पढ़ते थे ना इंजीनियरिंग में, उस कॉन्फिडेंस को लेते हुए मैं सेकेंड ईयर तो बड़े आराम से निकाल लिया। थर्ड ईयर में जब आया तब मुझे पता चला कि यार ये क्या है, बहुत सारी चीजें नई हो गई। फाइनल ईयर में बहुत सारी चीजें नई हो गई। तब जाके थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में हमने जो 2 साल कुछ नहीं पढ़ा था, वो पूरा थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में पढ़ा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आवर कॉन्फिडेंस, कुछ भी कह लो, ठीक ठाक ही जितने हिसाब से मैंने पढ़ा उस हिसाब से मार्क्स आए और अच्छा निकला फाइनल ईयर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे हम क्रिकेट बहुत खेला हम लोग ने, क्योंकि कॉलेज टीम में भी थे हम, हमारे साथ काफ़ी थे। क्रिकेट और मेडिकल कॉलेज से मैचेस होते थे उस समय। और फिर उसके बाद मैचेस तो अक्सर होते थे। एक बार टूर्नामेंट भी हुआ टेबल टेनिस का, उसमें भी हमें ठीक ठाक खेलो, क्योंकि सीखा ही हमने था टेबल टेनिस वहाँ। फिर भी एक कोई था, मेरे जूनियर था जस्ट, वो बहुत अच्छा खेलता था, उससे मैं हारा था फाइनल जब चैंपियनशिप हो रही थी, सेकंड रन अप हुआ था, याद है। तो सीखा भी वहीं पे और सब कुछ अच्छा हो रहा वहाँ पे। जब मैं वहां से निकल रहा था, वो सबसे मतलब ऐसा लग रहा था, आंसू भी आए, तो भी मतलब मैं जो सच बता रहा हूँ, जब वहां से निकला तो एक तरीके से आंख में पानी था, क्योंकि जितने हमारे दोस्त थे बहुत ही एक क्लोज रिलेशन हो गया था उन सबसे। तो वो मोमेंट मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, जब मैं उन लोग को, मतलब भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को जब हम विदा कह रहे थे, आप लोग पास आउट हो रहे थे और अपने अपने घर जा रहे थे, तो सही में 2 दिन तो मैं मतलब आंख में मतलब पानी ही रहा। कई लोग जो विदा होते हैं पता नहीं कब मिले, अभी रिसेंटली 25 साल बाद एक हम अपने रूममेट से मिले हैं अभी जस्ट 2 दिन पहले। तो दैट वाज, मतलब उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा मतलब लाइफ खत्म सी हो गई है। जो हम लोग, तुम लोग भी जब निकलोगे तुम लोग को भी ऐसा लगेगा कि साला कुछ कुछ खो गया है जिंदगी का सबसे बड़ा। और वो मोमेंट जो होता है ना, देखो पढ़ाई उड़ाई सब होती, सभी करते हैं और सब निकलते हैं पास आउट। ये जो इंसिडेंट लाइफ के होते हैं ना, आप जिस दिन एक एक मतलब एक लाइफ को आप छोड़ के दूसरे लाइफ में जो एंटर कर रहे होते हो,
तो बहुत ही एक अलग सा मतलब एक इमोशनल अगर आपका टच है अपने दोस्तों से और वो जो विदा होते हैं, तो उस मोमेंट को मैं आज तक नहीं भूला और तुम लोग भी ऐसा आई होप महसूस करोगे। और सीधे मैं जब आया अपने घर, तो बहुत दिन तक मैंने कहा 3 से 4 महीने तक तो आई थिंक उस इनर्शिया को मैं मतलब कम करने में बहुत टाइम लगा था। दैट वाज़ द होल, मतलब हमारा जो एंटर से लेके और जो बाहर निकले, ये था हमारा बीसीए भागलपुर की जर्नी। का आज भी याद है, मुझे लगता नहीं है, मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि मैं अभी वही हूँ। वही कॉमन रूम में जा रहा हूँ, वही टेबल टेनिस खेला, मुझे तो मतलब लगता ही नहीं कि मैं मतलब इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं ऑफिस में काम कर लिया हूँ 25 साल तक। आज भी मैं तो उसी तरह मेरा माइंड सेट है, बस चेंज हो गया है। मतलब मॉर्निंग में खेलना, वहां भी खेलता था, शाम को खेलना, और उस समय हम लोग कॉलेज था, बस अंतर इतना हुआ है आज मैं जॉब में आता हूँ 10 से 6, और वहां हम लोग 10 से 5 कॉलेज करते थे। तो मेरी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं है, बहुतों औरों के तो मुझे नहीं पता, पर मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ। मैं आज भी उसी तरह हूँ, मॉर्निंग में खेलता हूँ, फिर ऑफिस, और फिर खेलता हूँ, बीच में कभी कभी होता है तो मैं पढ़ा भी लेता हूँ। सर अभी भी किसी सीनियर से या फिर फ्रेंड से कांटेक्ट में है आपका, मतलब बातचीत होते रहता है? हाँ, और वैसे ही होता है जैसे कॉलेज में होता है, हम तो वैसे ही बात करते हैं जैसे कॉलेज में। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े हो गए तो एकदम मतलब बड़ा अब तुम लोग जैसे बात करेंगे नहीं, मतलब डिसेंसी के साथ लोग बात करते हैं ना बड़े हो जाने पर। लेकिन हम लोग Yes, जब sir. कॉलेज के दोस्त मिलते हैं तो उसी तरह बात करते हैं जैसे कॉलेज में बात करते थे। तुम लोग के सामने मिलो तो हम लोग थोड़ा डिसेंट हो जाएंगे, पर आज भी हम लोग वैसे ही दोस्त हैं हमारे, जिनको हम लोग उसी तरह बात करते हैं। वो बात का तरीका तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, पर आप लोग समझ ही गए होगे, एकदम डिट्टो उसी तरह बात करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। हमारे Yes, दोस्त sir. आज भी मिलते हैं, हाँ आज भी वही जो थोड़ी बहुत इधर उधर बातें होती है ना, उसकी चर्चा करते हैं, तुम्हारे साथ वो क्या था, मतलब कई चीजें, और आप लोग समझ ही रहे होगे। तो आज भी हम लोग इसी तरह बात करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब भले ही हम लोग बड़े दिखते हो कि और 40 या और 50s के एकदम करीब हैं और बड़ा मतलब अच्छे हो गए डिसेंट, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। माइंड सेट अभी भी मेरा तो खास तौर से 25 का है, टू बी वेरी फ्रैंक। दिल तो बच्चा है। दिल तो बच्चा है मेरा, आज भी बच्चा है। आज भी मैं हारता हूँ तो गुस्सा होता हूँ, अगर गेम खेल रहा हूँ हारूंगा तो अंदर से गुस्सा होऊंगा, ये होऊंगा वो होगा, सेम नेचर है, और उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ एज थोड़ा, वो एज इज नंबर जस्ट। Sir, how do you reach at a CEA, and what are the difficulties, struggle you have faced, being as you are from a middle class family? सीए में हम लोग गए वहां पे, तो थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम लोग का इंटरव्यू हुआ था, उसके थ्रू हम लोग का वहां पे सिलेक्शन हुआ था। और क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So it was like, or what difficulties did you faced? डिफिकल्टीज तो ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ हमने डिफिकल्टीज तो फेस नहीं की है। लेकिन डिफिकल्टीज जो मैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप कहो कि जो मैं पाना चाहता था वो नहीं पा पाया हूँ, स्टिल आई एम फाइटिंग टू गेट जो मैंने सोचा था। मैं बहुत दूर हूँ अभी, जो मैंने सोचा था मैं ये करूंगा और वो करूंगा, उससे भी फार फार अवे हूँ। पर वो डिफिकल्टीज नहीं है, वो हमारा रास्ता कुछ भटक गया, मतलब 25 साल से भटका हूँ। तो लेट अस सी कब हम ट्रैक पे आते हैं, लेकिन वन डे आई विल अचीव, ऐसा मैं मानता हूँ कि कभी न कभी तो आएगा, अभी टाइम गया नहीं। Yes. डिफिकल्टीज तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैक गलत था। We want to know that what make you unique from others, like your batchmates. अब ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरे बैचमेट से कभी आप मिलो तो वो बताएंगे। लेकिन मेरे अंदर जो नेगेटिव पॉइंट को हो या पॉजिटिव पॉइंट को, आई नेवर क्विट एनीथिंग। चाहे मेरे सामने कितने बहुत हर्डल्स, कुछ हर्डल्स हैं जो पर्सनल हैं, जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वो हर्डल्स आए और हर आदमी में आते होंगे, उनको मैंने बहुत ही अच्छे से टैकल किया और उसको ओवरकम किया। और यूनिक की बात जहां तक कहें,
बस ये कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा समझता ही नहीं हूँ। आई स्टिल मतलब फील लाइक आई एम 25। दैट इज आई नेवर क्विट, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे अपने ऑफिस में कोई प्रोग्राम, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। मतलब जैसे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होती है हमारे, तो आई ट्राइड एक्सेल सीख जाता हूँ। एक्सेल में फिर जब हमारी जरूरत पड़ी, जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, डेटाबेस पे काम कर रहा था, तो मुझे प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ी। देन आई एट दैट टाइम आई लर्न विजुअल बेसिक्स पूरा, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस तक। तो फिर एडवांस एक्सेल मैंने सीखा। मैंने ऑफिस के लिए मैक्रोज क्रिएट किए, जिससे कि जो यूनिक एक मैक्रोज का क्या होता है आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं, यू नो मैक्रोज इन एक्सेल? कोई नहीं जानते हो? एक्सेल पे काम किया आप लोग ने? सर थोड़ा बहुत। हाँ, तो Just एक्सेल basic. एक्सेल जो है ना, वो ज्यादातर ऑफिस में एक्सेल यूज होता है, तो आप लोग को एक्सेल भी सीखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ऑफिस में आपको एक्सेल पे काम करना आना चाहिए। तो मुझे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उस समय हम लोग को ऐसा कंप्यूटर नहीं था, तो हमने एक्सेल पे काम किया। यूनिक इस मामले में हम कह सकते हो कि जो चीज में मैं लग जाता हूँ, तो उसको पागल की तरह फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। ये सोचता हूँ कि मैं जो कर दूं वो दूसरा ना कर पाए। दैट इज द माइंडसेट ऑफ मी, कि मैं जो करता हूँ वो थोड़ा अलग है। अगर दुनिया इस तरह सोचती है तो मैं ऐसे करके दिखाऊं। और ये स्पिरिट जो है मुझे हर फील्ड में अभी तक जहां है मुझे कहीं बीट नहीं गया। भले मैं कुएं के एक तरफ मेढक में हूँ, जहां भी हूँ, लेकिन कुएं में भी मैं वहां पे एक्सेल हमेशा करता हूँ। जैसे मैं ऑफिस में हूँ, जब एक्सेल में भी आज ऑफिस में हूँ, लोग मुझे एक्सेल को बहुत सभी जानते हैं पूरे ऑफिस में कि सुमित को एक्सेल बहुत अच्छा आता है। इसी तरह कैरम जब मैं खेलना स्टार्ट किया था ऑफिस में, डोंट नो, मतलब प्लास्टिक के स्ट्राइकर से खेलता था। और कैरम में जो आप लोग कहते हो आई एम द चैंपियन, कई बार मैं पावर सेक्टर पे चैंपियन बना हूँ। लेकिन उसका यूनिक देखो किस तरह है, कोई चीज मेरे माइंड में, या आप लोग का यही स्पिरिट होना चाहिए। जब मैं फर्स्ट टाइम कैरम खेलने सेंट्रल जो अपने ऑफिस में पहुंचा, जो जहाँ पे कैरम लगा हुआ था, जब मैं और मेरा एक फ्रेंड खेल रहा था, कॉलेज का ही है वो, एक पर्सन ने आके सिंपल एक लाइन कहा था। वो लाइन था कि इस कैरम में पॉकेट ही नहीं है। मतलब हम दोनों खेल रहे थे, कॉइन जा नहीं रही थी। हम लोग बड़ा नूविश थे ना उस समय, जब कॉलेज में इतना स्टैंडर्ड के तो कैरम हम लोग खेलते नहीं, तो जैसे हम लोग घर में खेलते हैं वैसे ही कैरम ऑफिस और अपने कॉलेज में खेलते थे। लेकिन जब आप कैरम में जब हाई लेवल पे जाओगे तो दैट इज द डिफरेंट गेम। तो वहां पे हम Yes. लोग खेले, तो एक बंदे ने कहा कि कैरम में तो पॉकेट ही नहीं है। दैट लाइन जो मेरे दिमाग में टीज करने लगी है एवरी डे। देन आई लर्न कैरम। और कैरम तो यार फिजिक्स और मैथ्स ही तो है। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया, और मैं उस दिन से, ये बात 2000 के आसपास की, 1999 की, उस बंदे ने कहा था। आई नो हिज नेम ऑल्सो, मैं रिवील नहीं करना चाहता। तो उस छोटी से इंसिडेंट को मैंने मतलब अपने दिल में रख लिया, ये जिद पाना जो कह लो, और उसे ऐसा कंप्लीट किया कि मैं कई बार ऑफिस में ही नहीं, ऑफिस में तो आज मेरे आगे कैरम में कोई है नहीं, नोबडी कैन थिंक मेक एक पॉइंट भी बना ले। तो और पावर सेक्टर में मैं चैंपियन बन गया, और एक बार नहीं कई बार बना। और ये जो आप ट्रॉफी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये Yes, सब sir. वहां की है, मेडल्स भी हैं। तो एक Wow, sir. तो We all ये have seen your YouTube video, sir. हाँ, हमारे ये मैंने यूनिक क्या, किसी एक पर्सन ने कहा, जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो एक्चुअली बायोजूस और बड़े बड़े जो हैं आपके जो फोरम्स हैं, वहां पे आपको फिजिक्स पढ़ाते समय उन्होंने जो एनिमेशंस या सिमुलेशंस करते थे, Yes, sir. वो मैं मेरे माइंड में भी टीज करता था कि यार ये बनता कैसे, ये कैसे बनाते हैं। तो Sir ने दिया. और दैट थिंग वो, और मैंने अप्रोच भी किया, मैं और एक और मेरे साथ है जो एक बंदा है, वो मेरे लिए मोटिवेशनल था। वो उसने मुझे पिंच किया था, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसने एक वर्ड कहा था कि आप कर सकते हो। उसको मेरे ऊपर भरोसा था, और उसने इस ब्लेंडर का नाम लिया कि ब्लेंडर इज द सॉफ्टवेयर जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। उसको ज्यादा फेथ था मेरे ऊपर, उसने कहा आप कुछ भी कर सकते हो, बस आप स्टार्ट कर दो। तो उसका ये लाइन था, और मैंने टच किया ब्लेंडर। नाउ
मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है, मतलब 1.5 साल लगा। कोरोना का जो पीरियड था, मैंने कोरोना पीरियड में उस 2 साल पहले उसने कहा था, उस कोरोना पीरियड को मैंने पूरी तरह यूटिलाइज किया, जिसमें हमने ब्लेंडर जो कि एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत बहुत मूवीज बनती हैं। फिर पावर पॉइंट आप जानते ही होंगे, पावर पॉइंट में सिर्फ आप प्रेजेंटेशन आप बनाते हो, लेकिन पावर पॉइंट में एक ऐसा है कि आप उससे एनिमेट भी कर सकते हो, यानी छोटे मोटे आप एनिमेशंस कर सकते हो। तो फिजिक्स को पढ़ाने के लिए मुझे ब्लेंडर और पावर पॉइंट्स को पढ़ना पड़ा, वीडियो एडिटिंग करनी पड़ी। आज भी मैं एडोब प्रीमियर यूज करता हूँ, बहुत सारे हैं सॉफ्टवेयर, सब कुछ मैं यूज, जो हमारा आप चैनल देखते हो उसमें जितना वीडियो एडिटिंग और ये जितने भी एनिमेशन सिस्टम मैं खुद करता हूँ, बट इट टेक टाइम्स। तो ये जिद्दपना जो आपने कहा यूनिक है ना, तो ये जिद्दपना है और कुछ नहीं। मतलब ऐसे कह एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं, हम अगर कभी कभी सोचते हैं ना अपने आप को, तो मैं थोड़ा अपने आप को मेंटल भी समझता हूँ। क्यों? क्योंकि पागल गिरने लग जाता हूँ, तो दुनिया भूल जाता हूँ, उसके पीछे घुस जाता हूँ और उसको करके ही दम लेता हूँ। दैट इज द स्पिरिट। और मैं सोचता हूँ मैं यहाँ था, अगर बचपन में यानी 12th में अगर मैं कुछ और बड़ा सोचा होता, IAS और ये इसकी तैयारी सोचा होता, तो शायद उसको भी बीट कर सकता था। आज मैं ये सोचता हूँ, जब मैं इतना मतलब काम कर सकता हूँ, तो अगर उस समय मैंने छोटी सी वो सपने जो थे कि सिर्फ मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, उस समय अगर हमारे सपने कुछ और बड़े होते या सोच बड़ी होती, तो हो सकता है मैं इससे और कुछ बड़ा कर जाता। इसीलिए मैं जब भी गाइड करता हूँ जो 11th और 12th में बच्चे होते हैं, सोचो तो अपने आप वो मिल जाएगा, लेकिन आपको एक पागलपन होना चाहिए, एक मतलब जिसे कहते हैं कि पागलपन, मतलब इसे कैसे समझा, मतलब कुछ नहीं दिखे, सिर्फ वो दिखे और कुछ नहीं दिखे। एक मतलब बहुत मेहनत चाहिए। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 1 days 2 months 3 months, टेक अराउंड 3 to 4 years अपने उस सपने को। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आपने बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू अर्न मनी, बहुत छोटी है ये टीम बहुत ही छोटी है। अर्न मनी इज नॉट अ बिग इशू, जैसे आप बताते हो। मेरे हिसाब से पैसा कभी जरूरत है, लेकिन आप अगर इसे वाइडली देखो ना, बहुत थोड़ा आप लॉन्ग ड्यूरेशन में देखोगे ना, तो किसी भी पर्सन को अच्छी लाइफ, आप मान लो 80 years लाइफ है आपकी, अच्छी लाइफ आपके कार से नहीं होती है, आपके बड़े बड़े बंगलों से नहीं होती अच्छी लाइफ। मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी अच्छी लाइफ ये होती है कि आपको लोग जो एक अच्छी नजर से देखें, आप वर्ल्ड के लिए कुछ कर सको, जो आप नहीं भी रहो तो लोग आपको याद करें। अब एग्जाम्पल मैं लेता हूं, किशोर कुमार नहीं है, पर हमारे लिए और तुम्हारे लिए आज भी जिंदा है ना। हमें कहते हैं वो, मतलब उनका नहीं रहे इस दुनिया में या रहे, हमको तो उनको गाना सुनना है। जब वो थे तब भी हम उनका गाना ही सुनते थे, हम जाके मिलते थोड़ी ना थे। लाइफ वो वर्थफुल बनाया उन्होंने, अपनी लाइफ को क्या बनाया उन्होंने, वर्थफुल। वो नहीं भी है तब भी हैं, हमारे लिए तुम्हारे लिए आज भी जिंदा है, क्योंकि वो जिंदा थे तब हम भी नहीं सुनते थे, हम उनसे जाके मिलते थे, और आज भी उनके गाने बजते हैं तो उनसे मिलते नहीं। सर गाने से याद आया, सर गाने से याद आया, आपकी एक वीडियो मैंने देखा, आपने गाना भी गाकर डाला है। यार वो बता, कुछ भी करता रहता हूँ ना मैं, और कभी इमोशनल रहता हूँ, गाना भी गा देता हूँ। सर काफी अच्छा गाते हैं आप, 2-3 लाइन सर आपका फेवरेट गाना वो कर दीजिए, सुना दीजिए सर। यस सर, बहुत अच्छा गाते हैं सर, यूट्यूब वीडियो लोग देखे हैं सर, प्लीज सर। कौन सा गाना गाया, तो मैंने सोचा गाना गाने का। तो कोई भी आपका फेवरेट वंस। पल दो पल का शायर हूँ सर। मैं पल दो पल का शायर हूँ। एक है किशोर का ही है गाना, ऐसे 2-3 गाने हैं उसके अच्छे, एक ही लाइन में गाता हूँ। यस सर प्लीज। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। वाह सर, वाह सर। मैं गाना भी बहुत गाया हूँ, मतलब यार देखो ये सब चीजें, देखो गाना
डांस भी आपने पता नहीं देखा होगा, मैं डांस भी करता हूँ। अपने जो कैरम जाते हैं ना हम लोग, बाहर टूर्नामेंट्स होता है, तो हम लोग का एक प्रोग्राम होता है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, यू विल सी माय डांस आल्सो। नो सर, Yes, डांस sir. नहीं देखी। क्या देखा सर? तो मैं आई विल सेंड यू लिंक, है ना, तो आप Yes. डांस भी देख लेना। डांस में ना ये सब तो मतलब साइड है ना भाई, गाना इंजीनियर है ना, बेसिक चीज, वी आर इंजीनियर्स, Engineers. डू एनीथिंग, Anything. है ना। हमें क्यों? क्योंकि वी लॉजिक पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग सिर्फ लॉजिक पे काम करते हैं। ये है तो ऐसा होना चाहिए, हम लोग शुरू से ही है। और यही है कि गाना हो, डांस हो, खेलना हो, कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज नंबर। बस फील्ड में आप डाल दो इंजीनियर्स को, वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के अपना रास्ता बना लेते हैं। इंजीनियर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी, राइट। तो डांस भी है, गाना भी है, खेलते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, हाँ रोते भी हैं, उदास भी रहते हैं, हंसते भी हैं। लाइफ है ना, सब कुछ चलता है, उदास भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो आज हंसते हुए तो मैं कभी उदास नहीं हूँ, आंखों में आंसू नहीं आया हो, आया है और काफी भी रहा है। Sir, whom do you consider as your role model? रोल मॉडल? Yes. Yes, sir. नहीं, हाँ अगर आप बात करो एक्टिंग में, तो मैं तो सबसे पसंद अमिताभ बच्चन को करता हूँ एज यूजुअल, क्योंकि एक दो रीजन है। एक एक्टिंग तो खैर उसकी उनकी लाजवाब है, एक वो आवाज से बिलोंग करते हैं तो एक अलग सा लगता हम ही है अमिताभ बच्चन, एक ये रीजन है। और अगर मैं वो एक जो हमारे अंदर एक जो नेवर द क्विट जो स्पिरिट है, वो मैं कहीं भी एक लगता है मुझे गांगुली से ज्यादा आई है। सौरव गांगुली तुमने सुना है? Yes, sir. नाम तो नहीं Yes, होगा। sir. Yes, sir. दादा. Yes. दादा, उसके नेचर से पता नहीं बाय डिफॉल्ट आई है कि क्या है, आई डोंट नो, बट टीके से आउट हो गया था, मतलब पूरे इंडियन क्रिकेट टीम से, और साउथ अफ्रीका में मतलब उसका एक टेस्ट था, लिटमस टेस्ट, और वो जब फेस कर रहा था साउथ अफ्रीका में पहली बॉल, उस समय ये था, आज भी याद है, कि अगर वो आउट होता है जल्दी तो क्विट हो जाएगा वो, मतलब बाहर ही हो जाएगा, वापस नहीं आया। उस बंदे ने उस टाइम को इतना स्ट्रांगली इसको फेस किया और रिटर्न बैक हुआ। तो अगर जहां तक नेचर की बात करें तो जो फाइट करके वो आया है, मतलब जिसने उसने बहुत सारे उसने उस टाइम को मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ जो फील कर रहा हूँ। क्रिकेट मतलब इतनी साउथ अफ्रीका में इतनी तेज, इतनी बाउंसिंग बॉल, और आपके ऊपर ब्लॉक लगी हुई है, नाउ यू आर फेसिंग, उसकी मेंटेलिटी को मैं आज करता हूँ। क्या हो रहा होगा जब वो ग्राउंड पे बैट लेके आया होगा, उसके मन में क्या क्या चल रहा होगा। तो कहीं अगर कहा जाए तो मैं कोहली को मतलब एज ए इस स्पिरिट के लिए, क्योंकि मैं उसमें घुस के देखा हूँ उस एरा को जो उसने फेस किया था, बहुत ही यूनिक तरीके से फेस किया। तो इतना उसके खुद ही अमीर है वो, लेकिन अगर मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल जिसे कहेंगे टफनेस की जो बात की जाए, वो सौरव गांगुली से हमने सीखा। एग्रेसिवनेस भी सर, टीम इंडिया को एग्रेसिव बनाना, टी शर्ट खोल के डू दिस, हाँ ऐसे नहीं, मतलब वो जो है ना, वो स्पिरिट भी मैंने, मतलब वो डिफॉल्ट मेरे उसमें दिखती है। आज मैं गेम खेलता हूँ को स्लेजर जैसा जवाब देना, यस, टेट फॉर टैट, एकदम बिंदास रहना। एक ट्रैक देखो, ट्रैक पे तो आदमी चलता है, जो हम लोग सीखते हैं जो ट्रैक होता है, तो लेकिन वो परफेक्टली नहीं होना चाहिए। मेरी लाइफ में मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इवन प्योर वाटर भी कंडक्ट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, उसमें इम्प्योरिटी डालनी है। तो आदमी परफेक्ट भी इतना अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी जो है ना रहनी चाहिए। परफेक्ट आदमी कभी अच्छा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। वाटर नहीं है इतना कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई आदमी टोटली परफेक्ट हो भी नहीं सकता। नहीं होता नहीं, मन से वो सिखा जाता है ना, बच्चे को सिखाया जाता है ना, यू शुड डू लाइक दिस, यू शुडंट डू लाइक दिस, इट इज वेरी बैड हैबिट, इट इज वेरी,
इस तरह सिखाया जाता है ना बहुत सारे। एक्टिंग इज Yes. ऑसम। हाँ, तो वो मन तो करता है वो गलत काम करने के लिए, लेकिन क्या कहता है जो आपके जो फोर्स करता है ना वो जो एडिक्वेट और वो, तो आदमी को सीधे ट्रैक पे रखता है, बेचारा दिल मारे रहता है। मेरा ये मानना है, हाँ उसको एक्सट्रीम नहीं जाना है, यू हैव टू टेस्ट, आपको टेस्ट करता है, अपने दिल को दुखाना नहीं है कि दुखा रहे हो यार, मन कर रहा है वो गलत काम करने को। अब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सभी गलत काम करो, पर ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मतलब लाइफ है ना, यू शुड एंजॉय, नेवर मतलब स्टक टू फोर्सफुली स्टक टू दैट। अगर आपको दिल से है वो ट्रैक अच्छा, देन यू कैन गो, लेकिन अगर मन में जरा से भी आ रहा है यार नहीं वो कर लेते हैं, तो कर लो ना, दिक्कत क्या है। हाँ, एक्सट्रीम मत जाओ जिससे कि किसी और को नुकसान, मतलब मेरा ये मानना है कि आपकी स्वतंत्रता की सीमा वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक स्टार्ट होती है। यू ऑलवेज रिमेंबर, आप अपनी वही काम करते रहो, वही स्वतंत्रता आपकी वहीं तक रहे जहां दूसरों को परेशानी ना हो, वहां तक आप अपने लाइफ को एंजॉय करो। बस हम आज तक यही करते आ रहे हैं, किसी दूसरों को हमारे एक्टिविटी से परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है देन इमीडिएटली यू शुड स्टॉप देयर, एंड दैट इज द वे। और लाइफ बिंदास यू, पैसे के पीछे नेवर, आपको भागना है सिर्फ अपनी वैल्यू के लिए। कहा है ना 3 इडियट में, वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू। जिस कंपनी को हाँ, जिस कंपनी को आप ज्वाइन करो हैंडीकैप कर दो कि आपके बिना वो कंपनी चल ही नहीं सकती। थिंक लाइक दैट। आपने वहां पे अपना लेवल इस तरह उठा लेना है कि आप जब वहां से हटो तो वो कंपनी का अब क्या होगा, दैट लेवल शुड तुम लोग को अचीव करना है। ऐसा नहीं पैसा डिफॉल्ट है आपका, अगर आप अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो ना तो पैसा इज द सेकेंडरी चीज, वो ऑटोमेटिक आपके पीछे भागेगा। ये मैं आज 25 ईयर का एक्सपीरियंस में तुम लोग को सिंपल दे रहा हूं। आप कुछ भी करो, अपनी वैल्यू को हमेशा इंक्रीज करो, डोंट रश। जॉब के लिए आपको नहीं भागना है, आप अगर जो काम कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर करो ना ऐसा कि दुनिया देखती रह जाए। रात भर मैं जब अपने ब्लेंडर पढ़ रहा था, कांट इमेजिन 3 months जो है हमारा जो कोरोना के कारण, आई स्लेप्ट 4 hours ओनली फॉर स्टडिंग ब्लेंडर 3D सिमुलेशन। जब आप खोलोगे ना ब्लेंडर, अभी ओपन सोर्स हो रहे हैं, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फर्स्ट 15 days तो मैंने कहा आई वांट टू क्विट, नहीं होगा यार मेरे से। फिर 2 दिन मैंने अपने माइंड को रेस्ट दिया, फिर रिटर्न बैक हुआ, फिर मैं जो लगा 3 महीने हार्डली ऑन एवरेज आई स्लेप्ट 4 to 5 hours कंटिन्यूअसली। आई स्टडीड अराउंड 12 to 16। इतना तो मैं अपने कॉलेज में नहीं पढ़ा। पावर पॉइंट में पागल, एक्सेल भी ऐसी कि जब मैं ज्वाइन किया एक्सेल पढ़ने के लिए, वहां भी 2 से 3 मंथ लग गए मुझे उस पर मास्टरी करने में। तो ये छोटा सी इंसिडेंट है, हम तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। बीइंग सर्वेंट में कुछ अपने आप को एक्सप्लोर, और यहाँ पे आपको कोई कुछ अच्छा कर जाओ तो कुछ नहीं है, सब कुछ एक लॉ से चलता है, आप अलग से कुछ नहीं मिल सकता आपको। गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी आपको मिल जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, आप कुछ भी कर जाओ, एवरीथिंग प्रमोशन और ये सब आपको एक नियम के अनुसार मिलता है। मेरे ख्याल से 10-12 साल मैंने लगातार अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैरम में कई बार मेडल बना ले, लेकिन आज तक मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने कभी फेलिसिटेट नहीं किया। इवन किसी मैगजीन में आप देखोगे मेरा नाम नहीं दिखता। दिस इज द वे। तो इसका मतलब मैं अपना काम छोड़ दूं तो नहीं, उसी तरह आपको है, आप कहीं जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आपको पैसा बढ़ा के दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप अपने आप को खुद जज करो ना कि आप मार्केट में कहाँ लाते हो, क्या आप में कमी है, उस कमी को आप पागल की तरफ से पूरा करो। सॉफ्टवेयर डेवलप कितनी सारे लैंग्वेज हैं, पाइथन है और ये है। आई ट्राइड ऑल्सो फॉर पाइथन, ब्लेंडर में यूज होता है, बट मैं डिटेल में नहीं गया उसे। पाइथन बहुत सारे हैं आपके, अब तो बहुत सारे और भी आ चुके हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और इसकी जब से आपका एआई आया हुआ है, चैट जीपीटी है ना, इंटेलिजेंस वाला, तब तो आपको सॉफ्टवेयर में पूरा स्कोप है, बहुत स्कोप है। तो डू समथिंग, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, मेरे को ये कहना है। डोंट रश अबाउट मनी। अरे अभी तो तुम लोग 22-21 के हो गए,
ज्यादा 24 में आप पास आउट हो गए, अब भी से मनी यार कमाल कर दिया, नेवर थॉट। हाँ लगे रहो, लेकिन आप अपनी वैल्यू को एकदम अलग बनाओ, मतलब ऐसा करो, ऐसा मन में लाओ कि यार मेरे भाई देखो, कोई अलग बनता है वो दुनिया से अलग होता है ना। सचिन तेंदुलकर अलग है, अमिताभ बच्चन अलग है, और उसका काम भी तो अलग है, ये सब भूल जाते हो। अलग है ना वो सब, तो तुमको तो पहले काम अलग करना पड़ेगा, तब ना तुम लोगों की भीड़ से अलग हो गए। सिंपल सी थॉट है, और कोई थॉट नहीं। आपको भी तो काम अलग करना पड़ेगा अगर दुनिया को अलग अलग हटना है। आपको भी मिलीनियर बनना है, दैट इज द डिफॉल्ट। बट वैल्यू जब बढ़ाओगे तो मिलीनियर अपने आप आएगा। सचिन तेंदुलकर जब खेल रहा था तो उसने तभी ये थोड़ी ना सोचा था कि मेरे पास आज बिलीनियर पैसे होंगे, और ऐसा नहीं था। उसने अपने काम को बड़े स्टीडी वे में करता चला गया। जिस समय वो कर रहा था कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा था। उसी तरह आपने भी करना है, ट्रैक वहां से सीखना है। आप पहले अगर दिमाग में पैसे लाओगे, यू नेवर एक्सेल इन योर फील्ड। और फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बार बार कहा गया है। लाइफ में फील्ड जरा से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। झाड़ू अगर सड़क पे लगाना पड़े, वो झाड़ू आप अलग तरीके से और अच्छे से लगाओ, यू विल बी यूनिक। तो फील्ड तो मायने नहीं रखती है, ये हमेशा याद रखो। पैसे के पीछे यार कभी मत भागना। मैं 25 साल के बाद, हाँ नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट। मनी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर योर लाइफ। यार अल्टीमेटली तुम्हें 2 रोटी खाना, अच्छे फूड से कहीं से भी ले सकते हो। तो लैविश लाइफ जीना है तो आप जितनी मर्जी जॉब कर लो। एक भी बात बता दूं, हमेशा रेस्टोरेंट पे जाओगे जॉब करते वक्त, राइट में जरूर देखोगे यार दाम क्या है इसका। जॉब करने वाले कभी भी मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं लेते हैं, वो उनका फ्रीडम नहीं होता है। ये है तो पैसा, मेरा अपना ही व्यू है कि आप लोग को इतना डेडिकेटेड हो। जैसे आप लोग नई चीज स्टार्ट की हो कॉलेज में, एक रेडियो वाला आप निकाला है, उसी तरह बहुत सारी चीजें नई करने को आज है। पूरा मतलब एक स्कोप बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज के जमाने में यू विल बी हाईलाइटेड क्विकली, मतलब आपको तुरंत हाईलाइट हो जाते हो। तो ये चीज बहुत अच्छी है। तो आप लोग तो ये जो एक यूनिक सा काम, पता नहीं और भी सब करते होंगे, पर यू स्टार्टेड दिस कि आप पुराने स्टूडेंट्स मतलब सीनियर से मिलो, प्रोफेसर से इंटरव्यू लो, उनके बारे में जानो। हम लोग को तो ये मौका नहीं मिलता था। मतलब इतनी, हम लोग जब 90s में जब हम लोग वहां थे, डर लगता था, अरे वो सर आ गए, चुपचाप बैठ जाओ, हिलो मत, बाहर निकाल दें क्लास से, वो सर उधर जा रहे हैं तो साइड से वो लोग। इस तरह की हम लोग की मेंटेलिटी थी उस समय। आज तो इतना आप लोग मतलब इतना चेंज हो गया है कि आप सर से कुछ भी पूछ सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि बिंदास लाइफ को जियो, अपने आप को फ्री रखो, अपना गोल एकदम सेट रखो, और मनी के पीछे मत भागो कभी। बाय डिफॉल्ट ये आनी है। अगर आप यूनिक हो, पागलपन है, कुछ करना है जिंदगी में, आप 23 अब 4 साल दोनों पागल तरह, कोई भी फील्ड पकड़ लो आप जिसको अच्छा लग रहा हो, है ना। और दूसरी चीज, खाने पीने और स्पोर्ट्स को कभी क्विट मत करो। सबसे बड़ी चीज की है ना, मैं बता रहा हूं, आपकी ईटिंग हैबिट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इस एज से आप अगर ईटिंग हैबिट को सही करते हो ना, जहां आपने ईटिंग हैबिट अच्छी की, प्रॉपर आपने एक चीट डे एक रख के, वीक में संडे रख लो चीट डे, और इस एज से अगर आपने ईटिंग हैबिट को अच्छी की और अपने शरीर को देखना चालू किया ढंग से, तो सक्सेस तो यार पक्की है। आपका मशीन ठीक है ना, सोच तो ठीक होगी। 100% आप कोई भी चीज सोचोगे यू विल गेट इट। दैट इज द की। और जैसे मंत्र कहते हैं ना, आपको ईटिंग हैबिट, अपने बॉडी पे ध्यान देना कि आपको कितना एनर्जी है, कि आप कुछ भी कर सकते हो। एनर्जी नहीं रहेगी, नहीं सो जाओगे ना। आप मेहनत कर रहे हो, आप मैंने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख रहे हो, आपके अंदर वो, अगर आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है तो हाउ विल यू गेट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी शरीर है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बड़े बड़े चीजें नहीं चाहिए, एकदम सिंपल चीजें आपको खाने चाहिए। बहुत ज्यादा मन है आपको मतलब खाने का, तो एक दिन चीट डे रखो। अगर ये आपने यहां से रखा तो आपकी बॉडी जितनी अच्छी होती जाएगी, माइंड भी उतना अच्छा होता जाएगा, आपके सपने इतने अच्छे पूरे होने में पूरा साथ देगा। ये मैं 40s में जब पहुंचा तब जाके मालूम चला ईटिंग की मतलब इंपॉर्टेंस। ईटिंग और एक्सरसाइज बाय डिफॉल्ट हो रही थी, दैट वाज द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि मेरा मन था स्पोर्ट्स खेलने का।
लेकिन ईटिंग हैबिट मेरी कभी भी मतलब ऐसे सोचा नहीं था, और तुम लोग भी नहीं सोचते हो। कभी भी कुछ मिल गया, बाहर खा लिया, ये कर लिया, एंड एकदम होता है। और ये मतलब ये ब्लंडर्स हो रहे थे उस समय, और होते हैं इस एज में। और उस एज में आपको बताने वाला कोई रहता नहीं है इस खान पीन की जो इम्पोर्टेंस को ना, कोई बताने वाला नहीं होता, क्योंकि आपके जो जिस ग्रुप में रहते हो ना, यू आर वेरी यंग, एनर्जेटिक। आप बीमारियां क्या होती हैं, ये क्या होती है, नेवर बॉदर अबाउट दैट। एंड दैट स्मॉल थिंग्स धीरे 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 जब आप 40s में पहुंचते हो ना, तब आपको पता चला ओ शिट यार, ये गड़बड़, ये ब्लंडर हो गया, ये हो रहा था। और जरा सी सोच का अंतर है आपके खाने पीने में। जरा सा आपने मेंटेन किया, यू विल बी परफेक्ट। आप रखो ना 2 साल अच्छे से खाना, फाइबर खाओ, फ्रूट्स खाओ, और ऑयली चीज को अलग रखो। देखो ना, ज्यादा तुम 3 महीने इस चीज को करके देखो, तुम्हारी बॉडी में सडन चेंज दिखेगा एकदम। आई मतलब अब जहां बॉडी आपकी चेंज हुई, माइंड फिट हुआ, यू कैन बीट एनीथिंग यार। जो कुछ चाहो वो पाओगे। दैट इज द स्पिरिट। मतलब आपको कुछ करना है तो इस तरह सोचो, अपने गोल को अचीव करो, और अपने को फ्री रखो, किसी बंधन में मत बांधो। देखो पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो, है पावर सिस्टम में पढ़ते हो ना, ये लॉ, इंडक्टर, ट्रांसफर, प्राइमरी, ये सब ये फालतू सभी पढ़ते हैं यार। हम भी थे, हम भी पढ़े थे। यस सर। इसमें क्या है? और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉप है, जो पढ़ते हो वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप उसे फील नहीं कर पाते हो। राइट सर। पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, तभी आपने ट्रांसफार्मर को इमेजिन किया है, आपने प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी कर ली, इसका आपने उधर इनपुट दिया और पूरा सर्किट सॉल्व किया, आंसर आ गया जी, मार्क्स मिल गए। पर ट्रांसफार्मर कभी देखा है? किसी ने देखा है ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर देखा है? बोला उसकी उसकी हाइट देखो, 2 रहती है, उसके प्रोटेक्शन में क्या यूज होते हैं। ये तो हम जब हम लोग साइड पे जाते हैं तब यूं देखते थे हम लोग, अच्छा ये था प्राइमरी और सेकेंडरी, किधर है वो दिखेगा नहीं। और दैट इज द मेन ड्रॉबैक आवर एजुकेशन सिस्टम, कि उनको सिमुलेशन दिखाना चाहिए। आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में एवरीथिंग शुड हैव सम सिमुलेशंस, एटलीस्ट ट्रांसफार्मर रहना चाहिए, पावर सिस्टम वहां पे एक बनाना चाहिए। ये हमारे इंडिया सिस्टम मतलब है ये ड्रॉबैक। और आज का एजुकेशन सिस्टम जो ना और गड़बड़ कर दिया है ये। और वही सर, मैं योर आंसर ब्रिंग्स मी टू माय फॉलो अप क्वेश्चन दैट आप बोले कि आप पढ़ाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपके समय के कंपटीशन और आज के कंपटीशन में कोई चेंजेस आप देख रहे हैं? कोई अंतर आया है आपके समय कंपटीशन? अरे बहुत बहुत अंतर है, बहुत इंफीरियर हो गया आज का कंपटीशन। हमारे समय का हमने बताया, एक्सप्लेन किया उस समय का। आप अगर आपने उसका पता ही नहीं है ना, आप यू कैन नॉट आंसर ना। आज तो आप ऑब्जेक्टिव में गैस कर सकते हो, इट माइट बी, और आप वापस फील्ड में जा सकते हो। भाई क्वेश्चन आए, नीचे 4 ऑप्शंस हैं, उस क्वेश्चन से नीचे 4 ऑप्शन जब आप पढ़ते हो तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि इट माइट बी दैट, और फिर ऊपर जाके आप उस चैप्टर में जाके आंसर को निकाल सकते हो। लेकिन आप जब 90s के क्वेश्चन जब पढ़ोगे, सब्जेक्टिव आता था, आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा, उसका बेस नहीं पता, आपके पास कोई हिंट नहीं, कॉपी आपकी ब्लैंक जाएगी, आप ऑप्शन भी नहीं लिख सकते, ABC भी नहीं कर सकते। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत इंफीरियर हो गई, और जब से ये ऑब्जेक्टिव आया इससे तो और प्रॉब्लम हो गई है। लोगों की एनालिटिकल पावर, सब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस आता है तो आप एनालाइज करते हो, देन विल गेट द आंसर। ऐसा नहीं कि 2 फॉर्मूले लगाए या शॉर्टकट लगाया, ये इसका शॉर्टकट लगाया, आंसर आया, आगे बढ़ गए। नहीं, वहां जब आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे ना, पहली लाइन तीसरी लाइन पे जाते हैं, पहली लाइन भूल जाओगे। बहुत प्रॉब्लम होती थी आपको। आप पहले अगर पेपर 90s के कहीं मिले, उसको उठाओ और आज के पेपर को उठाओ, यू विल गेट द आईटी के पहले पेपर उठाना। आईटी के जो पहले पेपर आते थे ना, सब्जेक्टिव आते थे, आप देखोगे इंटीजर टाइप आते थे, मतलब आपको तो हवा ही नहीं लगेगी कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने में कितना टाइम। तो आज का जो कंपटीशन है, आज का जो है, मेरे अकॉर्डिंग, इन माय व्यू, इंफीरियर हो गया। इंफीरियर कहना ही बेकार है, बेकार से बेकार कर दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज माय पर्सनल पर्सनल व्यू है, किसी को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे लॉजिक में ये दे रहा हूँ कि एनालिटिकल पावर खत्म हो जाती है जब आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का काबिलियत नहीं रखते हो आप,
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज नॉट अ टफ था, हो सकता थोड़ा बहुत ट्रिक है उसमें, वो मायने नहीं रखती कि एनालिटिकल पावर आपकी खत्म हो रही है। और हो सकता है इट माइट बी क्योंकि इतने सारे बच्चे आ रहे हो तो उनको कॉपी की चेकिंग और इसके मतलब इस चीज से बचने के लिए उन्होंने ये सिस्टम निकाला हो, दैट इज द अनदर पार्ट, वो मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस चीज को कम करने, भाई इतने सारे पेपर होंगे तो चेक कौन करेगा, सब्जेक्टिव को तो चेक चाहिए होगा, और ऑब्जेक्टिव में तो आपने कंप्यूटर में डाला और आउटपुट हो गया। दैट वाज द मेरे ख्याल से ये मेन रीजन होगा जिसके कारण इसका ऑब्जेक्टिव किया गया हो। पर उस समय का जो पेपर होता था दैट वाज मतलब अमेजिंग, मतलब मजा आता था देने में, मतलब ऐसे पसीना निकलता था जब आपकी खाली जो कॉपी होती थी, पता चला 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। आईटी के जो पेपर आ रहे हैं ना उसमें इतने सारे हैं, 10 से कितने होते थे तुम भूल गया, 2 ही क्वेश्चन का बाकी रहा, हो ही नहीं लिख रहा कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां खत्म हो रहा है, क्योंकि उनके पेपर्स कई चैप्टर को मिक्स कर देते थे। इलेक्ट्रिकल को उठा के मैकेनिक्स में डाल दिया, आप लाइट पढ़ा रहे हो लाइट में भी मैकेनिक्स डाल दिया है। वैसा एडवांस में होता है ना, वो तो आज होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव रहता है ना, वो उसमें तो आप निकाल सकते हो, वो तो पता चल जाता है, लेकिन वहां तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, ये था अंतर मतलब वहां के। लेकिन उस समय की पढ़ाई एकदम मस्त रहती थी। आज एवरीथिंग क्या है सब शॉर्ट हो गया है, तो ठीक है सबका अपना अपना एंजॉयमेंट, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि कंपैरिजन करो तो 90s वाज द बेटर इन एजुकेशन फील्ड, मतलब वहां के जो क्वेश्चंस और क्वालिटी थी वो फार बेटर थी आज के जो कंपटीशन हो रहे उससे। सर उस समय आपका आईटी, जैसे हम लोग अभी सोच रहे थे आईटी नहीं हुआ, फिर टायर 3 कॉलेज वैसे ही भागलपुर, उस समय आप सोचे थे ऐसा? यार मेरा आईटी में रुड़की में हुआ था, मेरा रुड़की में उस समय हो गया था, रुड़की में, लेकिन पल्प एंड पेपर इंजीनियरिंग मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा हो गया क्या कहते हैं बीआईटी सिंधरी में, वहाँ बिहार का अलग होता था उस समय, तो वहाँ हो गया। तो क्योंकि हमारा बॉर्न ही बोध गया है, वी बिलोंग्स टू गया वहाँ, मेरे दादाजी सब वही है, मेरा जन्म भी उधर ही हुआ है बोध गया में, तो पापा यहाँ आके सर्विस करने लगे, तो वो निकल गया, और निकलने के बाद फिर कहानी वहां से चालू हुई, वो ऑटो पहुंचते ही यहाँ तक आ गई, ऑटो चलते चलते पता नहीं मैं कैसे यहाँ पहुंच गया, दैट आई डोंट नो, दैट इज वो ट्रैक बनता चला गया, जो मेरे मन में था वो कभी नहीं मिला, बट उस भीड़ के फोर्स में ना हम चलते ही चले गए और यहाँ पे आके मंजिल में पहुंच गया। और ये मंजिल में पहुंचते ही कभी कभी मन में बैठे, रात में अकेले जब बैठ रहा हूँ कभी सोचता हूँ क्या जिंदगी मतलब ऐसी होनी चाहिए, तो मैं उसको ऐसे बनाता हूँ क्रॉस, नेवर, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए नहीं थी, और मैं सोचता हूँ मैं कभी कुछ और हो सकता था, ये रहता है मन में कहीं कोने में दिल के कहीं एक टिक 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 करता रहता है, जब भी शांत बैठता है आदमी तो एक टिक टिक करता रहता है, यार तुम इस चीज के लिए नहीं थे, कुछ और होने थे, लेकिन आज हम यहाँ पे हैं, और कैसे हैं आई डोंट नो, एक माहौल बनता चला गया और मैं यहाँ पहुंच गया 25 इयर्स पता ही नहीं चला। और इसी तरह तुम लोग का हो, अगर अपनी लाइफ को प्लान नहीं करते हो ना, शादी होगी फिर बच्चे होंगे फिर उनको पढ़ाओ उनको लिखाओ, ये ऐसा करना लाइफ तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुमने अपने लाइफ को बिताया कैसे। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि ड्रीम करो, कुछ सोचो, ये सब होता रहेगा, जॉब भी मिलेगी, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, सब होंगे, लेकिन आपका जो ट्रैक है ना वो आपके माइंड में एकदम स्टक होना चाहिए। ये सोशल है ना, ये तो होना ही होना है, आप बड़े हो गए, जॉब लगेगी, शादी होगी, सब होगा, तो तब बाय डिफॉल्ट है ना, हमारी दुनिया में तो ऐसा हो गया, तो ये कोई बिजनेस नहीं करता, तो मैं ज्यादा शादी नहीं करता, हमेशा टॉप पे रहते हैं, क्या रीजन है, दैट्स द डिफरेंट पार्ट। आप तो होता, लेकिन अपने हम जानते थे जो हम आते हो ना मतलब लाइफ में कभी छोड़ना, वो चीज खाते पे और शरीर पे और अपने टारगेट कुछ, और शादी भी होगी, सब कुछ होगा, और आपकी थॉट पे, आपकी थॉट वो कोई दूसरा नहीं देख रहा हो, आप खुद देख रहे होगे, और उस ट्रैक को कभी मत छोड़ना, अपने पैशन को कभी सोचना, अपने ड्रीम को कभी सोचना, अपनी ड्रीम छोटा रखना नहीं हमारी तरफ कि इंजीनियर बनना है सरकार में, वो नहीं सुनना है, कुछ बड़ा सोचना है, पैसे के पीछे कभी नहीं भागना, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा अगर आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाते हो।
वैल्यू कब आपकी बढ़ेगी? जब आप मेहनत करोगे, उसके पागलपन दिखाओगे और मन में ये लाओगे कि यार मुझे कुछ अलग करना है, यार कुछ अलग करना है, ये तो भीड़ करती है, हम भीड़ में क्यों शामिल हो? इस तरह के थॉट आप लाओगे, इट्स वेरी टफ। मैं कह रहा हूं ना, बट इसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत ताकत लगती है, बहुत। इट इज नॉट वेरी इजी। कहना बहुत आसान है, मैंने कह दिया है, शरीर पे ध्यान रखो, खाने पे रखो, कहना आसान है। जब आप करने जाते हो ना इम्प्लीमेंटेशन, एंड दैट इज द मतलब मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब आप इम्प्लीमेंटेशन मोड में 4:30 उठना है, उठोगे नहीं। 10:30 सोना है, सोओगे नहीं। यू नो इट बेटर। सर अगर आपको वापस से कॉलेज आने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहोगे? जो भी आपने 4 साल में किया उससे अलग या कोई सेम चीज रिपीट? कोई चीज मिस कर गए हो टाइम तो ट्रेवल दोबारा करना कर। पड़े सर। अगर मैं आज कॉलेज, अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने आप तुम्हारी चैनल पे देखा, किसी तुमने पूछा है, पर मैंने कभी Yes, पहले sir, नहीं yes. सोचा था। अगर आज मुझे आज कॉलेज आना पड़े तो मैं एक अच्छी सी पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय खेल, ये चीज को अपनाऊंगा। खासतौर से खाने पीने पे बहुत ध्यान दूंगा। अगर आज मुझे रिटर्न दिया जाए, मतलब कहा जाए कि प्रॉपर क्लास में जाऊंगा, जो पढ़ा रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ूंगा, घर पे जाके जो पढ़ा रहे हैं उसे रिवाइज करूंगा, सबका टाइम टेबल बनाऊंगा और फिर से मैं करूंगा और अच्छी मतलब ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे लग रहा है, मतलब पढ़ूंगा जैसे कि मेरा बार कोई पढ़े नहीं। आज मैं अगर आज वापस आना, आई वांट टू रिपीट, मतलब होल और अच्छे से। जो जिस टाइम की वैल्यू मैंने आज सीखी है ना, उस समय मुझे तो पता नहीं है, ठीक है यार नहीं समझ में आ रहा है, सर पढ़ा रहे नहीं, चलना है एग्जाम में देख लेंगे ना, 5 साल के क्वेश्चंस आके देख लेंगे ना, पास तो होना है। दैट वाज द अप्रोच। लेकिन आज वो नहीं रहेगा। आज मैं फिर से पढ़ूंगा, उसके डेप्थ में जाऊंगा और अच्छे से पढ़ाई करूंगा, टाइम की वैल्यू समझूंगा, क्लास की वैल्यू को समझूंगा और हर काम मतलब खेल कूद सबकी टाइम की वैल्यू दूंगा। अपने कॉलेज लाइफ में मैंने खेल पे ज्यादा ध्यान दिया था, इस पे कम दिया था। तो आज अगर मुझे वापस जाना पड़े तो सब कुछ एक टाइम से करूंगा, जैसा है टीचर उसकी वैल्यू को समझूंगा। अगर टीचर अच्छा नहीं है, उनकी क्लास भी अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी बैठूंगा घर पे, मतलब हॉस्टल पे आके फिर से उसको देखूंगा। कम से कम क्लास के बाद 1 घंटा जरूर जो क्लास में उसको देखूंगा। ये सबसे पहला काम करूंगा। क्लास में जो भी स्टडीज हुए इन नाइट और समथिंग, आई विल रिवाइज में जो जो टॉपिक्स हुए हैं उनको एक बार रिवाइज करके फिर सोऊंगा। ये हमने ब्लंडर किया था अपने कॉलेज लाइफ में। आई नेवर मतलब इस तरह सोचा नहीं था। तो अगर मुझे वापस आना पड़े तो एक ढंग से पढ़ाई करूंगा और खेलूंगा तो फुल ऑन होके उसमें, लेकिन टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस समझूंगा, जो कि मैं उस समय तुम लोग की एज में नहीं समझ में आता, जो आज मुझे समझ में आता है, समय की वैल्यू। तो समय का यूटिलाइजेशन आज मैं अच्छे से करूंगा और अच्छे से पढ़ाई। सर आजकल हम लोगों को स्किल्स गैदर करना और मतलब जॉब्स लेने के लिए कुछ परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है। समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। इस पे आप अगर कुछ टिप्स दे सकते थे। यस सर, प्लेसमेंट तो कॉलेज से लगता ही नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जॉब के लिए डर सा लगता है तुम लोग को कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा लगता है तुम लोग को, पर ऐसा है नहीं। एक फियर है, तुम इस फियर से निकलो। ऐसा लगता है कि जॉब मिलेगी नहीं, है ना, या क्या होगा, इस तरह बहुत क्या सारी चीजें आपके, हम इंजीनियरिंग करने के बाद क्या आगे करेंगे, इस तरह की एक फॉल्स फीलिंग आपके मन में हमेशा आती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले है विल गेट जॉब। अगर आप जॉब, मैं सच बता रहा हूँ, आपको बड़ा वो लगेगा और इमेजिनरी एक्सिस पे लगेगी मेरी बातें, पर ये सच्चाई है कि आप इस मैटर पे एकदम ध्यान दो। पहले भी हमने बताया, आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो और डेप्थ में पढ़ो और उसे विजुलाइज करके पढ़ो। बुक तक नहीं सीमित रखो। कोई भी चीज आप पढ़ते हो उसे विजुलाइजेशन में लाओ। मतलब आप ये सोचो कि वो सामने हो रही है, तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे। ये मत सोचो कि मुझे मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पढ़ना है और रट के चले जाना है। दैट स्मॉल थिंग जो है ना, आपको जब हट जाएगा ना, जब आप विजुलाइजेशन पावर आपकी, जो आप पढ़ रहे हो उसे विजुलाइज भी कर रहे हो ना, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको कोई भी कंपनी तुरंत हायर करेगी जब आपका ये माइंड सेट रहेगा। तो आप लोग कभी भी जॉब के लिए मत परेशान हो, ये होगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई ढंग से करनी पड़ेगी।
पढ़ाई हमें पता है ना कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है, 5 साल के क्वेश्चंस को देखा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो रहे हैं, ये कर लिया, मार्क्स आ गए, निकल गए। दैट इज द बैड थिंग, दैट मेक्स यू, क्या करते हैं ना कि आप जब आप बाहर की दुनिया में आते हो आपको कॉन्फिडेंट लूज करते हो, क्योंकि आप अंदर से ये फील करते हो कि यार मैंने पढ़ा नहीं। जब ये आप फील करते हो तो फिर क्या होता है, फिर कहते जॉब नहीं मिलेगी यार। क्यों? क्योंकि आप अपनी वैल्यू को समझ जानते हो, आपकी अपनी वैल्यू, एंड दैट इज, आप जो पढ़ रहे हो ना, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, पावर सिस्टम पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो बहुत सारे वोल्टेज एंडिंग, मतलब बहुत सारे रहते हैं उसमें, बहुत सारे इफेक्ट रहते हैं, लेकिन आप उसको विजुलाइज नहीं करते। और ये जब विजुलाइजेशन आपका नहीं रहता तो आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो, फिर आप परेशान होते जॉब के लिए। अच्छे से जिस दिन आप पढ़ोगे और जॉब आपको 100% मिलेगी, और जॉब आप एक दिन छोड़ के खुद अपनी कंपनी स्टार्ट करो, सच टाइप ऑफ माइंड आप रखो। जॉब करो उस दिन, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब, मतलब मैं मना करता हूँ, यू डू जॉब फॉर 2 years 3 years 5 years, पर ये टारगेट रखो कि आपको जिंदगी में जॉब नहीं करना है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन जॉब, मतलब जॉब खुद क्रिएट करना है आपको। दैट इज द माइंडसेट। आप तो बेसिक में ही फेल हो जाते हो, कहते हो जॉब नहीं, ऐसा मत सोचो, कभी मत सोचो। उसका बेस आप स्ट्रॉन्ग करो, यानी जो आप पढ़ो उसको विजुलाइज करके पढ़ो, न कि सिर्फ लेटर्स की तरह पढ़ो कि मुझे मार्क्स लाना है, और उसके लिए प्रोफेसर की जान ले लो। एकदम जो मन में आया सर से जाके पूछो, नहीं है समझा पा रहे, गूगल सर्च करो। तो आप जबकि आपकी जो पढ़ाई जो होगी ना एक विजुलाइजेशन के साथ होगी, तो आपको जॉब की कभी मन में आएगी नहीं जो जॉब मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है, आप खुद ही फील कर रहे हो यार मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। आप कंपनी में जाओगे, आपको प्रेशर नहीं होगा, क्या पूछेगा, यू विल से एनीथिंग, कहीं इंटरव्यू जॉब के लिए आओगे, एंड दैट यू मेक कॉन्फिडेंट। तो मेरा तो आपको इतना है कि जॉब के लिए आप परेशान जरा से भी मत हो कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। हमने शुरू में बताया मेक योर वैल्यू, पढ़ाई करो लेकिन विजुलाइजेशन के साथ। इस तरह मत पढ़ो कि मुझे मार्क्स लाना है। अगर आप इस तरह पढ़ोगे तो आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि मुझे जॉब मिलेगी। ये मैंने नहीं किया है, ये मैं मतलब इस स्टेज में आके मैं समझाऊं, मुझे उस समय कोई समझाने वाला इस तरह नहीं था। जब मैं यहाँ आया, जब इतने सालों काम किए, तब मुझे समझा कि एक्चुअली हम कहाँ पे गलत थे और मुझे क्या करना चाहिए था। ये चीज हमने जब इतनी सालों की जॉब की, लोगों से मिला, वहां की बातों को मिला कहीं, तब मुझे ये सब पता चला। और अगर ये चीज हमें पहले से होती, विजुलाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसे उसकी डेप्थ में जा रहे हैं, तो फिर जो कंपनी क्यों नहीं जॉब देगी यार तुम्हें? आप खुद ही सोचो ना, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, या ईच एंड एवरीथिंग 100% नहीं, 80% नहीं जानते हो, यू हैव टू गिव आंसर। विदाउट जाओगे कॉलर को हाई करके पूछ लो यार जो पूछना है, बिकॉज यू हैव नॉलेज ना। जॉब की क्या प्रॉब्लम है? फिर तो तुम इतनी नॉलेज गेन कर लिए होगे 5 साल जॉब करके, यू शुड ओपन योर ओन कंपनी, 4 अच्छे दोस्त मिल जाओ कंपनी। मैं तो आज भी कुछ सोच रहा हूँ नया, मैं तो बंदा ढूंढ रहा हूँ एनर्जेटिक, कुछ करूं, कुछ नया करूं लाइफ में। तो आज भी मैं सोचता हूँ तुम लोग तो क्या हो, तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो। डू द जॉब, 5 साल करो, छोड़ दो, अपनी कंपनी खोलो, स्टार्ट करो। आजकल तो स्टार्टअप है, सरकार आपको स्टार्टअप यूनिकॉर्न कई लोग बने हुए। भाई और बताओ आप क्यों छोटी सी बात को सोचते हो जॉब नहीं मिलेगी? यू नेवर थिंक ना, आप कभी थिंक नहीं करो कि जॉब नहीं मिलेगी। कॉन्फिडेंट बनो ना आप लोग, क्या दिक्कत है? अभी तो 2 साल है ना तुम्हारे पास, घिस दो पूरा। अरे जब मैं यार 3-3 महीना लगातार पढ़ सकता हूँ, जो मेरे कभी पढ़ा ही नहीं है, तो तुम लोग तो यहाँ बैठ जाओ साले को। लेकिन सबसे जी ऐसा कब होगा? जब आप अपने शरीर और खाने वाने को एकदम परफेक्ट करोगे, तब आपको इतनी ताकत आएगी अंदर से, देन यू कैन डू एनीथिंग। और कभी आप सोच नहीं सकते कि मुझे जॉब चाहिए। तुमको इतना कॉन्फिडेंट होगा जॉब जो कंपनी ले लेगी वो नुकसान करेगी, सच कॉन्फिडेंस यू है। मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, अगर वो कंपनी नहीं लेती है ना, वो अपना नुकसान करेगी। दैट स्पिरिट में आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके लिए क्या है, आपको डेप्थ नॉलेज है, आपको विजुलाइजेशन, जो आप पढ़ रहे हो उसको विजुलाइज करो, वो चीज हो रही है। आप प्रोग्राम बना रहे हो तो रन करके देखो, अगर देखो तो किसके लिए बना रहे हो। आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तो देखो उसका ट्रांसफार्मर, देखो देखो क्या हो रहा है। नहीं तो आज तो गूगल है, यूट्यूब है, गो एंड सी देयर लॉट ऑफ थिंग।
आपको जॉब के लिए तो परेशानी नहीं होना है, यू मेक योर सेल्फ ना एसेट। आप लाइबिलिटी क्यों बनोगे यार किसी पे? आप जॉब दे दो यार, जॉब जॉब दे दो, यू गो एंड दो, लो पसंद दो, नहीं तो जाओ, आप अपना नुकसान करो। ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। और सबका बेस कहाँ है? अच्छी ईटिंग, शरीर पे ध्यान। ये अगर प्राइमरी चीज अच्छी है ना, और आपका माइंड सेट एकदम क्लियर है, इतना आपका विजन क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए डोंट बॉदर अबाउट जॉब, डू योर जॉब जो आप अभी है। कहा है ना किसी ने, जॉब टुडे इज द बेस्ट इंश्योरेंस ऑफ योर लाइफ। आप काम कर रहे हो ना, वही आपका इंश्योरेंस है। क्यों बॉदर करना है यार जॉब के लिए? आपको इस समय क्या काम है? अच्छे से पढ़ना और मन लगा के पढ़ना। बस आपका ड्रॉबैक जो है, आज के बाद ये माइंडसेट चेंज हो सकता है। बस आप उसमें एक चीज एसेंस ऐड करो, जो भी चीज पढ़ो उसे विजुलाइज करके पढ़ो, वो रट्टा मार के नहीं पढ़ो। क्या है उसकी तरह? चतुर की तरह। चतुर रामायण। ये चतुर की तरह एकदम मत पढ़ो। यू एंजॉय भी करोगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आप पागल हो जाओगे, ये काम कैसे? कोई चीजें ऐसी होती हैं आपको दिखती नहीं है। बहुत सारे सिमुलेशन से गो ना, गूगल जाओ ना, बहुत सारे मिलेंगे आपको। इस तरह की चीजें करो। उसकी जॉब के लिए मैं मेरी तरफ से नेवर बॉदर। आप अपने आप को एसेट बनाओ, अपने आप दुनिया आपको चाहेगी। उसके लिए बहुत ही सिंपल है, अच्छा खाना खाना, अपने शरीर पे ध्यान देना, एक्सरसाइज करना है, कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ लो, और अपने विजन जो पढ़ रहे हो, जो जॉब है आपका आज, उसे अच्छे से करो। आपको जॉब के लिए नहीं परेशानी होगी। ये सिंपल दो ही मंत्र है, सिंपल है, जो डेली लाइफ है, उसको आप थोड़ा सा चेंज करोगे, जॉब आपके हाथ में। और पैशन अगर है, एक तो दो चीज है, एक तो पैशन है, वो अलग चीज है। अगर पैशन आपके उससे मिल जाए, जैसे पढ़ाई से किसी किसी का पैशन होता है, जैसे आप उधर ले लो, फिल्म में था ना, पढ़ता भी था, पैशन भी था उसका, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर वो पैशन हो जाए आपकी पढ़ाई, फिर तो सोचनी नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है, बहुत पढ़ाई इट्स वेरी टफ टास्क लगती है, पैशन कुछ और होता है। और पैशन को मत छोड़ो, कभी भी छोड़ो, यू ऑलवेज बी लाइफ। आप हमेशा जिंदा दिल रहोगे। पैशन को आप उसके लिए वक्त निकालो, उसके लिए वो करो। और ये जो जॉब है, इसे नहीं भी मन है, पर आप इसे करते जाओ। और जॉब की कभी टेंशन नहीं लेना, अपने आप को वैल्यू दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं। यार यंग फेलोज इतने अच्छी नई कॉलेज में पढ़ रहे हो आप इतने सारे आपके पास सोर्सेज हैं, यूट्यूब और ये बहुत सारे हैं, जाओ उनको रिसर्च करो, पागल बनो, टाइम टाइम टेबल बना लो। पर इट विल गो ग्रेजुअली ईयर्स, ऐसा नहीं है 2 महीने अभी एनर्जेटिक हो गए यू विल डू, पर इससे कोई फायदा नहीं है। इसको आपको एक टाइम टेबल बना के 2 से 3 साल लगाना पड़ेगा, देन यू विल गेट इजीली जॉब की अच्छी जॉब मिलेगी आपको। इसलिए बॉदर मत करना कभी जॉब। थैंक यू सो मच सर, इतना कुछ बताया, मतलब हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, नॉलेज इतना कुछ। ये अपना एक्सपीरियंस है। Yes, जो sir, हमने गलत किया है, जो हमने किया है, वो आपने नहीं करना है, आपको कुछ अलग करना है। हम लोग तो चलते चले आ गए, हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, बताने वाला नहीं था, इतना इंटरेक्शन नहीं हो सकता था, इतने खुले विचार के लोग नहीं थे उस समय, है ना। इन स्पाइट ऑफ दैट हम चलते चले गए, और कब इस मुकाम पे आ गए पता ही नहीं चला, राइट। और कुछ जस्ट इन शॉर्ट मैसेज फॉर बीसीएंस। बीसीएंस के लिए यार, तो जनरल मैसेज मैंने आपको दिया है कि आप शरीर पे ध्यान रखो, पैशन को बनाए रखो, टाइम की वैल्यू को समझो, और खाने पे ध्यान रखो। ये सभी हमारे बीसीएंस को है। और जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, विल गेट इट, डोंट बॉदर एनीथिंग। Yes, sir. It's been a very pleasure to talk to you. Like, you gave us many insights. Thank you for giving us your time. It's been an honor to be such with an accomplished individual and to be able to be presented our perspective before you. Thank you, sir. With this, Thank we you, have all to of come to an end. With this, we have came to the end of this session. It was not a session meant to be just a normal session. Sir, you were so friendly, interactive, and calm throughout the meeting. We got to know a lot about you and also the college, and also as an individual, the life. It was intended, inspiring, informative, and very interesting session. You are the epitome of excellence, sir. Also, I'd like to thank all the wonderful people who spoke today. And just like that, I sense a circle closing.
back to the beginning and near the end. At last, once again, I'd like to put my strong gratitude towards the one and only Sumit sir for putting light in our world with with his valuable words. Thanks a lot, sir. Thank all of you.